हरे कृष्ण। कृष्णा 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 हरे 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 राम जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय 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 श्री
भगवान की, परम करुणा गौर निधाय भगवान की, श्री नरसिंहदेव प्रहलाद महाराज की, गणनाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, श्रील प्रभुपाद की, देव महाराज की। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। कम करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। Hare Krishna. Hare Krishna. So we welcome all of you for the most auspicious occasion of Nityananda Trayodashi. Actually, today's day is the most important day for a Gaudiya Vaishnava. It's more important than Janmashtami. It's more important than Balaram Jayanti. It's more even important than God Purnima. Because Nityananda Prabhu's Karuna cannot be matched by anyone. Dui Prabhu came. There are two Prabhus who came, Gauranga Mahaprabhu and Nityananda Prabhu. But the lock of the mercy which Chaitanya Mahaprabhu had in his heart, the key, who had the key? Nityananda Prabhu. So Parama Karuna Nityananda Prabhu ki! हरे कृष्णा। तो आप लोग में से कितने लोग अंग्रेजी जानते हैं? आप कितने लोग अंग्रेजी जानते हैं? आप लोग में से जानते हैं? नहीं जानते तो मतलब आप लोग कोई अंग्रेजी नहीं जानते? हिंदी इज बेटर। इंग्लिश में बोला। आई विल ट्राई टू स्पीक थोड़ा हिंदी और थोड़ा इंग्लिश में मिक्स करके। तो आज जो है नित्यानंद प्रभु के जीवन का दो अंश के बारे में हम चर्चा करेंगे। We will talk about two distinct things from Nityanand Prabhu's life. First thing is, who is Nityananda Prabhu? What is the identity of Nityananda Prabhu? And the second point which we will talk about is the mood of Nityananda Mahaprabhu. Through his various leelas, we will try to understand the mood of Nityananda Prabhu. That's when we will understand that why today's festival is the most important festival for us. And finally, 3 points as a devotee, how to accept the mercy of Nityananda Prabhu will also be discussed. So 3 points, 3 points only to accept the mercy of Nityananda Prabhu. That also will be discussed. So first, who is Nityananda Prabhu? What is the identity of Nityananda Prabhu? Daoji, Balramji, correct? So Narottam Das Thakur says, Brajendra Nandan yehi sachi sutta hoile se, Balaram hoile Nitai. So Balaram ji was a Nitai.
So Nityananda Prabhu is not different from Lord Balaram. So if Nityananda Prabhu is not different from Balaram, so we should first understand who is Lord Balaram. Who is Lord Balaram? Sankarsana. Okay. First expansion of the Lord. Correct. He is the first expansion of the Lord. And Balaramji is also not different from Krishna. There is no difference between Krishna and Balaram. Some places in scriptures talk about Balaramji as Sandhini Shakti. Who is Balaram? As Sandhini Shakti of Krishna. At some places, Balaramji is talked about the fountainhead of Guru Tattva. Hare Krishna. So he is talked about the fountainhead of Guru Tattva. But all scriptures everywhere unanimously proclaim that Lord Balaram is not different from Krishna. There is no difference between Lord Balaram and Krishna. But then Srila Prabhupada was asked, what is the difference between Krishna and Balaram? Prabhupada said two things. There are two differences. One is, yes, the rang, the color of Balaram and Krishna. What is Krishna's color? Sham rang. The newly formed rain cloud or monsoon cloud. मतलब कृष्ण का रंग कैसा है? जो मतलब वर्षा से होने से पहले जो मेघ बनता है, तो शाम रंग का जो रंग है कृष्ण का। और बलराम जी का रंग कैसे होता है? The cloud which is formed during the spring season, just before the spring season. हाँ? So वसंत ऋतु के पहले जो बादल का रंग होता है, उसी तरह होता है बलराम जी का रंग। तो ये है पहला डिफरेंस, जो है ये पहला डिफरेंस है बलराम और कृष्ण में। दूसरा डिफरेंस क्या है? दूसरा डिफरेंस क्या है? प्रभुपाद जी ने बताया, सेव्य भगवान और सेवक भगवान है। उनका जो मूड है, हाँ, दोनों में अंतर है। कृष्ण का अंतर, कृष्ण और बलराम जी के जो मूड में अंतर है। Who is Krishna? Krishna is in the mood of accepting service. क्या है? वो भगवान जो है सर्विस जो है एक्सेप्ट करता है। और बलराम जी क्या करते हैं? कृष्ण ही है, पर उनका मूड क्या है? ऑफरिंग सर्विस। वो देते हैं, हाँ, भगवान को जो है सेवा करते हैं बलराम जी, और कृष्ण जो है जो सेवा है उसको एक्सेप्ट करते हैं। ये है सबसे दो अंतर। पहला है उनका रंग और दूसरा जो है उनका मूड, हाँ, उनकी भावना कैसी होती है उसके ऊपर डिफरेंस है। और बलराम जी हमें क्या सिखाता है? बलराम जी हमें सिखाता है कि हम लोग भगवान की तरफ जो प्रेम है उसे कैसे व्यतीत करना चाहिए। मतलब हाउ टू एक्सप्रेस अवर लव टुवर्ड्स लॉर्ड इज एक्चुअली टॉट बाय बलराम जी। बलराम जी कौन से भी युग में आए, किसी भी कोई भी अपीयरेंस में आए, हाँ, पर उनका जो मूड है वो चेंज नहीं होता है। कभी बड़े भाई बनकर आते हैं, कभी छोटे भाई बनकर आते हैं, पर मूड क्या होता है उनका? भगवान की सेवा करना। जो लक्ष्मण आए तो क्या हो गया? भगवान जब लक्ष्मण के रूप में आए त्रेता युग में, तो क्या था? भगवान की सेवा में लगे थे, हाँ, पूरे समय। एक्चुअली ऐसा बताया जाता है कि शास्त्र के हिसाब से जब राम को वनवास जाने का जो निर्णय लिया गया, दशरथ ने कहा राम को कि आपको वनवास जाना पड़ेगा, तो शास्त्र में ऐसा कहीं भी वर्णन नहीं है कि छोटे भाई को बड़े भाई के साथ जाना चाहिए। To follow the footsteps of a big brother, there is nowhere in the Shastra. But for a wife to follow her husband, a chaste wife to follow her husband is there mentioned. So Sita going with Ram, सीता जो राम के साथ गई वो शास्त्र के हिसाब से था, और लक्ष्मण जी जो राम के साथ गए ऐसे शास्त्र में कहीं नहीं था। पर लक्ष्मण जी का क्या मूड था? वहां की सेवा करना। और किस तरह से सेवा किया उन्होंने? 14 साल किस तरह से सेवा किया उन्होंने? दिन में जो है वो उनकी सेवा कैसे करते थे? अगर कोई रास्ता कांटे का हो या पत्थर का हो तो वो खुद चलते थे और उस पर साफ करते थे और उनको चलने देते थे। और उनको अगर प्यास लगे तो जाकर पानी लाते। मतलब छोटी से छोटी जो सेवा है राम जी का जो है लक्ष्मण जी करते थे। और रात को क्या करते थे? अपने बाण और धनुष से लेकर इनको जो है प्रोटेक्ट करते थे। हाँ, सो फॉर 14 years, जो 14 साल जो है लक्ष्मण कभी सोए नहीं।
हाँ, पूरी तरह 14 साल जो है लक्ष्मण जी ने भगवान की सेवा की। क्यों? क्योंकि उनका मूड ही क्या है, भगवान की सेवा कैसे करना चाहिए। और जब वो खुद बलराम जी बलराम बनकर आए कृष्ण लीला में, तो कैसे भगवान की सेवा किया उन्होंने? सबसे कैसे किया? ऐसा कहा जाता है कि बलराम जी जो है पांचों रस में भगवान की सेवा करते थे। कौन से 5 रस है? वात्सल्य भाव, शांत भाव, दास्य भाव, साख्य भाव और माधुर्य भाव। ये पांचों भाव में जो है बलराम जी जो है भगवान की सेवा करते हैं। बलराम जी ने शांत भाव में कैसे किया सेवा भगवान का? पहले तो सबसे पहले भगवान जी खुद बलराम जी वृंदावन बने। जो धाम जो कौन है? बलराम जी है। बलराम जी और धाम में कोई अंतर नहीं है, वृंदावन के अंदर। और उन्होंने वृंदावन धाम बनकर कैसे सेवा किया? जब कृष्ण छोटा था और कोई राक्षस, कोई डिमन आता था उनके पास, तो ऐसे उनके चेहरे पे अगर ऐसी घबराहट दिखने लगी कृष्ण के चेहरे पे, तो बलराम जी क्या करते थे? पास में आते थे। डिमन व्हेन इट कम्स क्लोज टू कृष्णा, बलराम जी यूज्ड टू एक्सपैंड वृंदावन, लाइक यूज्ड टू एक्सपैंड हिमसेल्फ, ताकि डिफरेंस जो है उनका डिस्टेंस जो है बढ़ जाए। और शाम को खेलने के बाद कृष्ण को वापस आना पड़ता घर पे, तो बहुत दूर होता जंगल, तो सोचते कि मुझे मम्मी के पास जल्दी जाना है, माँ यशोदा के पास जल्दी जाना है। तो बलराम जी क्या करते? वृंदावन होने के कारण कॉन्ट्रैक्ट करते, ताकि 2-3 स्टेप्स में ही वो घर पहुंच जाए। तो बलराम जी का सिर्फ यही एक लक्ष्य है, क्या? भगवान की सेवा कैसे करना चाहिए। शांत भाव में कैसे कैसे सेवा किया उन्होंने? भगवान का पिकॉक फेदर बनके, फ्लूट बनके, ड्रेस बनके, चप्पल बनके, जो भी भगवान पहनते हैं वो क्या है? बलराम जी के एक्सपांशन, कोई फर्क नहीं उसमें। तो भगवान जी का मूड क्या है? भगवान की जो है सेवा करना। और भगवान जो है वैकुंठ लोक में भी बलराम जी विष्णु जी के भी सेवा में लगे रहते। कैसे सेवा में लगे रहते? अनंत शेष, ये बिकम्स अनंत शेष। और क्या करते हैं? सबसे बेस्ट मैट्रेस इन द वर्ल्ड बनते हैं भगवान विष्णु के लिए। और ऐसा मैट्रेस है, आप समझेंगे नहीं। आपको जब ठंडी लगता है तो आप लोग क्या करते हैं? कंबल ओढ़ के सोते हैं ना। तो कभी अगर विष्णु को ठंडी लगा तो क्या करते हैं? ये मैट्रेस गर्म हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो अनंत शेष जो है गर्म हो जाते हैं। और अगर विष्णु को अगर गर्मी लग गई तो अनंत शेष जो आइस बन जाते हैं, तो आराम से अच्छा लगता है। क्लाइमेट कंट्रोल्ड मैट्रेस है एकदम, क्लाइमेट कंट्रोल्ड मैट्रेस। इस तरह से वो सेवा करते हैं। तो पांचों रस में कैसा सेवा करते हो? पांचों रस में वात्सल्य भाव में कैसे सेवा करते हैं? बलराम जी बनके, कृष्ण तूने मट्टी खाया, बता देता हूं मम्मी को। कृष्णा तू इतनी मस्ती क्यों कर रहा है? कृष्ण तू चोरी क्यों कर रहा है? तो इस तरह से वो वात्सल्य भाव में भगवान की सेवा करते हैं। फिर शांत भाव में तो मैंने बताया, फ्लूट, ड्रेस, गारमेंट्स, ज्वेलरी बनकर सेवा करते हैं। साख्य भाव में कैसे सेवा करते हैं? श्रीधाम बनकर, और ऊपर और उनका जो एक्सपेंशन है, और वो खुद भी साख्य बनकर खेलते हैं उनके साथ। तो साख्य भाव, वात्सल्य, साख्य, शांत। फिर और कौन सा है? दास्य भाव में कैसे सेवा करते हैं? लक्ष्मण, लक्ष्मण अनंत शेषा, कितना। और खुद बलराम जी, कितनी बार आपने फोटो देखा है कि कृष्ण सोए और बलराम जी कृष्ण के पैर दबा रहे, और ऐसा भी फोटो है बलराम सोए और कृष्ण जी भी पैर दबा रहे। तो बलराम जी और सेवा भी भगवान की इस तरह से करते हैं, दास्य भाव में। और माधुर्य भाव में कैसे करते हैं सेवा? कौन सी मंजरी बनते हैं वो? आनंद मंजरी, राधा रानी की जो सिस्टर है वो बनकर जो है माधुर्य लीला में वो जो है उनकी सेवा करते हैं। तो पांचों भाव में जो है बलराम जी जो है भगवान की सेवा करते हैं। तो मूड क्या है नित्यानंद प्रभु का? बलराम जी का मूड से डिफरेंट नहीं है। बलराम जी के मूड से जो है वो डिफरेंट नहीं है। तो जब कलयुग आया तो कलयुग में बहुत डिग्रेडेशन है, बराबर है ना? तो कलयुग के समय इतना डिग्रेडेशन था, तो चैतन्य महाप्रभु ने डिसाइड किया अपने स्वीट विल से कि मैं यहाँ पर आकर जो है हम सब लोगों को थोड़ा आशा मर्जी देंगे कर। तो नित्यानंद प्रभु भी
उनके साथ आए, हाँ, हम लोग के साथ जो है भगवान की मर्सी जो है वो बांटने में। और ये जो मूड है सर्विस का नित्यानंद प्रभु का, आप देखेंगे कि पूरे लीला में नित्यानंद प्रभु भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। नित्यानंद प्रभु का जन्म एक्चुअली भगवान से 12 साल पहले 1474 में हुआ। 1474 में 12 साल पहले जो है नित्यानंद प्रभु का जन्म हुआ। जन्म होने के बाद 12 साल तक वो कहाँ थे? एक चक्रधाम में थे। और ऐसा कहा जाता है कि एक चक्रधाम और आजू बाजू का जो इलाका था वहां पर ड्रॉट क्या बोलते हैं, अकाल पड़ गया था, बारिश नहीं हो रही थी। मगर नित्यानंद प्रभु ने जब जन्म लिया, जन्म लेते ही वहां पे इतनी वर्षा हुई, इतने ग्रेन्स, फल फूल सब एक्चुअली ग्रो होने लगे। तो बहुत एक्चुअली सब कुछ अच्छा होने लगा। और नित्यानंद प्रभु 12 साल जो है एक चक्र में रहे। एक चक्र में क्या करते थे? वो एक ही लीला करते थे। क्या करते थे? ड्रामा, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, विलन सब कुछ बनते थे। सब कुछ डबल एक्टिंग, ट्रिपल एक्टिंग भी किया उन्होंने, ऐसा बताते हैं। और राधानाथ महाराज बताते थे एक लीला में वो एक्चुअली दोनों बने, मतलब विलन भी बने और हीरो भी बने, ऐसा एक्टिंग करते थे। और जब लोग पूछते थे उनको कि आपको ये सब कहाँ से नॉलेज मिला, ये सब कथा आपको कैसे मालूम पड़ा, तो नित्यानंद प्रभु क्या कहते थे? ये सब मेरी लीला है। तो लोग लगता है बच्चा है, पता नहीं, पर ये मेरी लीला है। तो इस तरह से नित्यानंद प्रभु ने 12 साल क्या किया? सिर्फ ड्रामा किया, एक्टिंग। और ऐसा एक्टिंग करते थे उनको लगता था कि रियल एक्चुअली हो रहा है। एक समय ऐसा सीन था कि अक्रूरा था उनका एक दोस्त, और अक्रूर कृष्ण बलराम को ले जा रहे थे और वो गोपी के भाव में आ गए और जोर जोर से रोने लगे और कोई भी उनको सेटिस्फाई नहीं कर सकता। और ऐसा कहते थे कि भगवान का जो शरीर था बहुत सुंदर था। उनका जो आइस था, आइस में क्या था? बोलते थे कि जब भी देखते तो सिर्फ कृष्ण प्रेम दिखता था। उनकी जो नाक थी, नाक जो सीसम फ्लावर है ना, सीसम फ्लावर की तरह थी, एकदम ब्यूटीफुल। और उनका जो लिप्स था एकदम रेड, एक फ्रूट का नाम दिया था, बिम्बा फ्रूट की तरह उनका लिप्स था। तो बहुत सुंदर उनका था। और ऐसा कहते थे कि पपेट जो है ना, पपेट को बटर से जो बनाया जाएगा तो कैसा लगेगा पपेट, वैसा उनका शरीर एकदम कोमल था। और ऐसा कहते हैं कि जब बचपन में मतलब आप चारों पैर पे जाते थे, मतलब चारों दोनों पैर और दो हाथ में क्रॉल करते थे, तो ऐसे लगता था कि कोई कॉटन बॉल जो है ना वो रोल हो रहा है। तो इस तरह से बहुत सुंदर दृश्य था वहां। और 12 साल जो एक चक्र के लोग ऐसा कहते हैं कि अपने बच्चों से ज्यादा आप दूसरे के बच्चों को प्यार नहीं कर सकते, बराबर है ना? मुझे एक्सपीरियंस है तो मैं बोल सकता हूँ कि हमारे बच्चों से ज्यादा हम दूसरे बच्चों से प्यार नहीं कर सकते। मगर एक चक्र में ऐसी स्थिति थी कि सभी लोग जो है नित्यानंद प्रभु को अपने बच्चे से ज्यादा प्यार करते थे। ऐसा मूड था, उस ऐसा मूड चल रहा था। तो कब क्या हुआ? एक सन्यासी, ट्रैवलिंग सन्यासी वहां पर एक चक्र आए और नित्यानंद प्रभु के माता पिता हड़ाई पंडित और पद्मावती के घर पे वो रुके। और उस समय कल्चर क्या था? सन्यासी की जो सेवा करना कल्चर था। तो बहुत अच्छी तरह से उन्होंने उस सन्यासी का सेवा किया। और जाते समय उन्होंने बोला कि आप ये घर जो है मेरा घर, जो आपका ही घर समझिए, और आपको जो चाहिए आप मांग सकते हैं, जो चाहिए मांग सकते हैं। तो ब्राह्मण सन्यासी ने कहा कि मैं तो मुझे तो ज्यादा चीज नहीं चाहिए, I do not want many things because I live a very simple life. अगर जो आपका बेटा है नित्यानंद, अगर वो नित्यानंद अगर मेरे साथ आ सके ट्रैवलिंग कंपेनियन बन के, तो मेरे हेल्प हो सकता है। तो हड़ाई पंडित मतलब उनका जो दिल है क्रैश हो गया, वो अपने बेटे को मांग रहे थे। पर फिर उस समय का कल्चर था कि सन्यासी के लिए मतलब कुछ भी देंगे करके। आजकल तो क्या है कि बाप जाते हैं सन्यासी से बोलते हैं मेरा बच्चा हुआ है, आप महाराज जी आप जरा बच्चों का नामकरण कीजिएगा। बच्चे का नामकरण सन्यासी जो करते हैं, सन्यासी जी करने के बाद क्या होता है? माँ बाप सोचते हैं नाम अच्छा नहीं तो नाम भी बदल देते। हाँ, तो इतना भी हमारे पास एक्चुअली कल्चर नहीं है। पर उस समय कल्चर ऐसा नहीं था। कल्चर क्या था कि सन्यासी ने जो बात दिया है उसको पूरा करेंगे। तो इसके कारण उन्होंने क्या किया? पिताई को जो है उनके साथ भेज दिया और live without the separation of
निताय। एंड अगले 20 साल जो निताय कहाँ थे, पूरे इंडिया में नॉर्थ से साउथ, पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट, नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट, सभी तीर्थ स्थानों का उन्होंने परिक्रमा किया। और वो गए पंढरपुर, जहां पर उन्हें लक्ष्मी तीर्थ जो है उनके गुरु वो मिले। और वहां पे ऐसा कहा जाता है कि किसी शास्त्र में कि उन्होंने उनसे इनिशिएशन लिया और उनका नाम क्या हुआ, स्वरूपा। और वहीं पर लक्ष्मी तीर्थ के डिसाइपल थे माधवेंद्रपुरी, वहां पर वो माधवेंद्रपुरी को भी मिले और माधवेंद्रपुरी को भी उन्होंने अपना गुरु माना क्योंकि वो सीनियर गॉड ब्रदर थे। फिर वहां से वो वृंदावन पहुंचे। जब वो वृंदावन पहुंचे तो जोर जोर से चिल्लाने लगे, कृष्णा 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 वेयर आर यू। और पूरे मतलब रोल होने लगे, उनका जो हाथ पैर सब शिवर हो रहा था, उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे। मतलब ऐसी अवस्था हो गई थी कि मतलब डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। नित्यानंद प्रभु वृंदावन में आते और कृष्ण कृष्ण करके आने लगे। उस समय जो है उनको एक दर्शन मिला। किसका दर्शन मिला? चैतन्य महाप्रभु का नवदीप में जो दर्शन मिला। और उनको ऐसे लगा कि उन्हें नवदीप जाना चाहिए चैतन्य महाप्रभु को। तो आप देखेंगे कि निताय की सेवा की भावना कैसी थी। नित्यानंद प्रभु को पता था कि संकीर्तन यज्ञ कलयुग का यज्ञ है, संकीर्तन यज्ञ करना चाहिए। मगर उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि मुझे पता है सब कुछ तो मुझे चालू करता हूँ, नहीं। उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का वेट किया कि जब चैतन्य महाप्रभु इनॉग्रेट करेंगे उसके बाद जो है मैं संकीर्तन यज्ञ करूंगा। तब तक उन्होंने एक्चुअली कोई संकीर्तन यज्ञ नहीं किया। He waited for Lord Chaitanya to inaugurate the Sankirtan movement before he joined the Sankirtan. That is the mood of service which Nityananda Prabhu has. He waited. So then he went and met. कहाँ पर मिले चैतन्य महाप्रभु को? नंदन आचार्य का घर। अगर आप इस पर गए कभी मायापुर, कितने लोग गए यहाँ से? एक चक्र कितने लोग गए? तो अगर आप लोग नहीं गए तो डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि वाणी से हम लोग जो है कहीं भी पहुंच सकते हैं। तो हम लोग जो मायापुर अब जाएंगे, क्या हो रहा मायापुर में देखेंगे, और नित्यानंद प्रभु की लीला कैसे हो रही थी। हम लोग यहाँ से हम लोग मायापुर से जाएंगे। तो नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु कहाँ मिले? नंदनाचार्य के घर में। नंदनाचार्य के घर में मिले। मिलते ही मतलब उनका जो एम्ब्रेस था, उनकी जो आलिंगन और क्या बोलते हैं उनका रेसिप्रोकेशन, मतलब पीपल वर एस्टोनिश्ड एक्चुअली। उसके बाद अगले दिन जो था व्यास पूजा था, व्यास देव की पूजा कर रहे थे। तो श्रीवास ठाकुर ने नित्यानंद प्रभु को गार्लैंड दिया, बोला कि व्यास देव को आप गार्लैंड कीजिए। तो वो उठे, गार्लैंड लिया उन्होंने और कहा सो बी इट, सो बी इट। तो श्रीवास ठाकुर ने कहा नित्यानंद प्रभु गार्लैंड। फिर देखिए श्रीवास ठाकुर को बोला सो बी इट, सो बी इट। ऐसे कुछ 10 टाइम सो बी इट बोल रहे थे और एक कुछ नहीं कर रहे थे। तो श्रीवास ठाकुर ने फिर चैतन्य महाप्रभु से कहा, चैतन्य महाप्रभु जरा बोलिए नित्यानंद प्रभु को कि व्यासदेव को गार्लैंड चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने रिक्वेस्ट किया नित्यानंद प्रभु को, प्लीज आप गार्लैंड बनाइए। तो नित्यानंद प्रभु ने क्या किया? वो गार्लैंड जो है चैतन्य महाप्रभु को, नित्यानंद प्रभु की, चैतन्य महाप्रभु की। तो मैं ये लीला क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इससे मालूम पड़ रहा है कि उनका जो भाव है, द स्पिरिट ऑफ सर्विस वाज ऑलवेज देयर। कभी कभी किसी लीला में आपको लगेगा कि नित्यानंद प्रभु डिसएग्री कर रहे हैं। नित्यानंद प्रभु इज डिसएग्री, बट इज एक्चुअली नॉट डिसएग्री। नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु से के अगेंस्ट मतलब जा रहे हैं। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु वृंदावन के लिए निकल रहे थे, तो नित्यानंद प्रभु ने उनको गलत रास्ता बताया। फिर वो फिर मायापुर आए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का जो दिल की बात जो थी वो नित्यानंद प्रभु को पता थी। He knew the innermost desire of Chaitanya Mahaprabhu. That is why he directed Chaitanya Mahaprabhu back. And वहां पर क्या हुआ? अद्वैताचार्य पहले खड़े थे,
फिर वहां पे 3 दिन फिस्टिंग हुआ, और फिस्टिंग में क्या हुआ, सची माता, उनका भी डिजायर था कि अब चैतन्य महाप्रभु चले गए, संन्यास लिया तो उनको कुकिंग करने को नहीं मिलेगा, तो घर तो नहीं जाएंगे ऑफिस, तो 3 दिन उन्होंने, सची माता ने भी कुक करके चैतन्य महाप्रभु को जो है डिफरेंट फीस्ट खिलाए, बहुत अच्छे, और बहुत अच्छा। एक्चुअली अगर डिस्कस करने जाएंगे तो फिर कल सुबह तक यही चलेगा कि डिस्कशन, क्योंकि कृष्णराज कविराज गोस्वामी जो है एक कुक थे, तो ईच आइटम जो उनके प्लेट में गिरा था उसके बारे में डिस्क्रिप्शन है चैतन्य चैतन्य, बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है इसके बारे में। और ऐसा हुआ कि चैतन्य महाप्रभु ने, मैं तो सन्यासी हूँ, मैं इतना नहीं खा सकता हूँ, और नित्यानंद प्रभु ने खाया पूरा, और बोले इतना इससे क्या होगा, मुझे तो बहुत भूख लग रहा है, और लाइए। तो ये बहुत मतलब डिटेल में अगर आप लीला सुनेंगे समझ में आएगा इसके बारे में। फिर अगर आप देखेंगे कि दूसरी एक लीला थी जहां पर नित्यानंद प्रभु ने जो है चैतन्य महाप्रभु का जो संन्यास दंडा है उसको तोड़कर 3 टुकड़े कर दिए। चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास जो है केशव भारती से लिया था, जो मायावाद संप्रदाय में आते हैं, और वो एक दंडी सन्यासी का एक दंडा दिया था, तो नित्यानंद प्रभु ने उसके संन्यास दंडे को तोड़कर 3 कर दिया। और जब चैतन्य महाप्रभु आए, बोले कि मेरा डंडा कहाँ पर है, नित्यानंद प्रभु बोला डंडा, कौन सा डंडा, तो वो डंडा तो टूट गया। मुझे कैसे टूट गया, आपने तो तोड़ा वो डंडा, मुझे कैसे, बोलते आप कल नाच रहे थे, तो नाचते नाचते आप डंडे पे गिर गए और डंडा टूट गया 3 रस्ते में। इस तरह से मतलब क्या था, आचार्य बताते हैं कि रियल रीजन क्या था, रियल रीजन ये था कि वैष्णव संप्रदाय, चैतन्य महाप्रभु जो है वैष्णव फिलोसफी प्रीच कर रहे थे, और वैष्णव संप्रदाय में क्या होता है, त्रिदंडी सन्यासी, मनसा वाचा कामा जो है भगवान की सेवा करना, तो त्रिदंडी सन्यासी होते हैं। तो महाप्रभु की जो मन की इच्छा जी थी वो नित्यानंद प्रभु जाते थे, और इसके हिसाब से वो जो है सब लीला करते थे। तो इस तरह से उन्होंने बहुत सी लीलाएं की समझने के लिए कि नित्यानंद प्रभु की सेवा करते हैं। तो ये मूड जो है ये जानना बहुत जरूरी है नित्यानंद प्रभु। और जो नित्यानंद प्रभु है वो आदि गुरु भी है, बलराम जी जो है आदि गुरु है, और नित्यानंद प्रभु भी जो है आदि गुरु है। और ऐसा कहा जाता है कि नित्यानंद प्रभु जो है ओशन ऑफ ब्लिस है, मतलब समुद्र, किसका समुद्र होंगे लोग, आनंद, आनंद का सागर, करुणा का, ब्लिस ब्लिस ब्लिस, ओशन ऑफ ब्लिस है, तो आनंद का सागर है वो। अगर आप उनका नाम भी देखिए तो क्या नाम है उनका, नित्यानंद, नित्य से आनंद है। तो और कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि जब नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु आए तो गौड़ी देश में क्या हुआ, सन और मून दोनों साथ में आए। सन और मून दोनों साथ में कभी आ सकता है, गौड़ी देश में नहीं आता, मगर सन और मून दोनों साथ में आए, ऐसा बताते हैं कृष्णदास गोस्वामी। और ऐसा बताते हैं एक मून नहीं, कोटि चंद्र, एक नहीं 1 करोड़ जो चंद्रमा है, और चंद्रमा आने के कारण क्या होगा, सूदिंग रिलीफ। तो जो ऐसा कहते हैं कि अगर आपके मटीरियल वर्ल्ड में क्या होता है, हम लोग सब लोग क्या ढूंढ रहे हैं, आनंद को ढूंढ रहे हैं, बराबर है। आनंद प्रभु बता रहे हैं कि हम लोग सब आनंद को ढूंढ रहे हैं। आनंद प्रभु, उनका नाम आनंद प्रभु है, फिर भी आनंद को ढूंढ रहे हैं। तो आनंद, सब लोग आनंद ढूंढ रहे हैं, है कि नहीं। सब लोगों को खुशी चाहिए, आनंद चाहिए लाइफ में। मगर क्या हो रहा है, लाइफ में खुशी मिल रही है, आनंद मिल रही है क्या, नहीं मिल रही। सब लोग रोज सुबह क्या गाते हैं, संसार दावा नागलीदा लोग। संसार जो है मटीरियल फॉरेस्ट फायर है, यहाँ पे कोई आनंद नहीं है, दुखालय अशाश्वत है, कितना भी आप ट्राई कर लो यहाँ पे आनंद मिलना मुश्किल है। मगर एक सोल्यूशन दिया है, इस मटीरियल वर्ल्ड में भी आनंद मिले। क्या कहते हैं, संसार दावा नललित लोका प्राणाय कारुण्य गना गना। तो क्लाउड ऑफ मर्सी कौन लाता है, गुरु। जो गुरु है, स्पिरिचुअल मास्टर है, वो जो क्लाउड ऑफ मर्सी लाता है और इस फॉरेस्ट ब्लेजिंग फायर पर वर्षा करते हैं। सो ही एक्चुअली कम्स और वर्षा करते हैं। द क्लाउड ऑफ मर्सी, वहां पे रेन जो है, मतलब पानी कहां से मिलता है उनको, स्पिरिचुअल मास्टर को कहां से मिलता है,
नित्यानंद प्रभु के आनंद के सागर से। नित्यानंद प्रभु के आनंद के सागर से जो है स्पिरिचुअल मास्टर को वो जो रेन क्लाउड में पानी मिलता है, उससे हमारे में वर्षा होती है। तो एक वायर है, कनेक्शन है वायर का। हमको सबको मर्सी चाहिए, बराबर है। तो महावदन में आया कौन है? चैतन्य महाप्रभु। पर उनका क्या है? उनका हार्ट जो क्या है, लॉक्ड है। उसका की किसके पास है? नित्यानंद प्रभु। तो वायर कनेक्शन ऐसा है, कनेक्शन नित्यानंद चैतन्य महाप्रभु का जो मर्सी है, हार्ट कनेक्टेड है नित्यानंद प्रभु से। नित्यानंद प्रभु का तो ओशन है, बड़ा पूरा ओशन है मर्सी। वहां से छोटे छोटे वाइब्स कनेक्ट होते हैं बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर के हाथ। और वो बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर जो है वो मर्सी हमको, तो ये बहुत जानना जरूरी है कि गुरु तत्व को जो मर्सी जो मिलता है वो नित्यानंद प्रभु के ओशन से आता है। हाँ, तो लोचन दास ठाकुर कहते हैं एक इनके भजन में कि वोल्ट ऑफ मर्सी, वोल्ट मतलब जैसे सेफ वोल्ट होता है, ऐसा वोल्ट ऑफ मर्सी मतलब एक कमरा है जो मर्सी से भरा हुआ है। उस कमरे को कौन खोलता है? नित्यानंद प्रभु आकर उस मर्सी को खोलते हैं। वो खोलते हैं तो क्या होगा? अगर कोई सोचो कि डैम को खोल दिया तो क्या होगा? केरला में डैम खुला था, मालूम है इस साल और गया साल, तो क्या हो गया? पूरा केरला फ्लड हो गया। इसी तरह से नित्यानंद प्रभु ने क्या किया है, इस मर्सी के जो डैम को खोल दिया है। तो क्या हुआ है? पूरा पूरा मर्सी सब जगह पर है। इसका प्रूफ क्या है? इसका प्रूफ क्या है? हाँ, जहां पर हम सब जो बैठे हैं ये फ्लड है, नित्यानंद प्रभु के मर्सी का फ्लड है। नित्यानंद प्रभु की तो ये मर्सी जो है नित्यानंद प्रभु का हमारे सबको मिलता है। हाँ? इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर एक भजन में बहुत अच्छा कहते हैं। क्या कहते हैं? कि आई हैव ओपन द मार्केट प्लेस, आई हैव अ गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू। हु हैज ओपन द मार्केट प्लेस? नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु हैज ओपन द मार्केट प्लेस। एंड व्हाट इज द प्राइस यू हैव टू पे टू गिव कृष्ण प्रेम? बाय कृष्ण प्रेम देयर फेथ, श्रद्धा, श्रद्धा की जरूरत है। मैं नित्यानंद प्रभु की मर्जी इतनी अच्छी है, इतनी है, हाँ, कि अगर आप देखेंगे जगाई मदाई की स्टोरी सबको पता है, तो मैं बोलूंगा नहीं जगाई मदाई की स्टोरी, मगर मदाई ने एक प्रेयर बोला उसके बाद। मैं एक्चुअली प्रेयर्स रीड कर रहा था जगाई मदाई का, हाँ, और मदाई ने एक प्रेयर बोला। बहुत सुंदर प्रेयर है एक्चुअली, और आप सुनेंगे उसको प्रेयर को। हाँ, तो प्रेयर में क्या बोलते हैं मदाई? मदाई ये कहते हैं कि अजामिल को आपकी मर्सी क्यों मिली? क्योंकि अजामिल ने भगवान का नाम नारायण पुकारा था, तो उन्होंने एक बार शुद्ध नाम पुकारा था, इसके लिए आपकी मर्सी मिली। गजेंद्र को आपकी मर्सी क्यों मिली? क्योंकि उन्होंने प्रार्थना की थी आपसे, इसीलिए उनको मर्सी मिली। कंस को आपकी मर्सी कैसे मिली? कंस को आपकी मर्सी कैसे मिली? क्योंकि वो हमेशा आपके बारे में सोचता था। ऑलवेज कंसा यूज्ड टू रिमेंबर कृष्ण। सो ये इसके कारण नहीं है। मगर मैंने क्या किया है? मैंने ना भगवान का नाम लिया है, ना प्रार्थना किया है, ना भगवान के बारे में कुछ नहीं किया है। इसके बावजूद मुझे ये मर्सी क्यों दिया जा रहा है? भगवान मुझे क्यों ये मर्सी दिया जा रहा है नित्यानंद प्रभु? ऐसा कुछ नहीं। और नित्यानंद प्रभु इतने उदार थे कि जब चैतन्य महाप्रभु आए जगाई मदाई को मारने के लिए, तो क्या उन्होंने कहा? उन्होंने जो है नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु से कहा कि आप जो आए यहाँ पर क्यों आए? कलयुग का, कल्कि का काम है सुदर्शन चक्र चलाना, आपका काम नहीं है। और दूसरा क्या था उन्होंने कि पहले उन्होंने सिर्फ अच्छाई देखा। क्या अच्छाई देखा? कि मदाई मारने आ रहा था तो जगाई ने उनको रोका। बोला ये जगाई ने मुझे सेव किया, आपका मर्सी इस पर उनको देना चाहिए। इन ऑल दीज थिंग्स आल्सो व्हाट ही सीइंग? ही सीइंग द गुड। ही सीइंग द गुड। सो नित्यानंद प्रभु की जो मर्सी है उसका कोई कंपैरिजन नहीं है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। और ये कॉस्टलेस मर्सी है, ये कॉस्टलेस मर्सी है, कोई कॉस्ट नहीं है। मदाई बोला कि कॉस्ट क्या है इसका? मुझे ये मर्सी क्यों मिला है? इसका कोई मर्सी का कोई कॉस्ट नहीं है। और ऐसा कहा जाता है कि अगर नित्यानंद प्रभु की मर्सी मिले तो क्या होगा? हमारे लाइफ में सुख होगा। तो नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं एक भजन में कि नरोत्तम बरो दुखी, नरोत्तम बरो दुखी, निताय मोरो करो सुखी। Because Narottam Das Thakur knows who is the ocean of bliss.
आनंद खंड किसके पास है? नित्यानंद प्रभु के पास। और एक भजन में वो कहते हैं कि आहा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी। हाँ, तो आप देखेंगे कि आचार्य को पता है कि कहां पर है मर्सी, कहां पर है आनंद का भंडार। आनंद का भंडार किसके पास है? नित्यानंद प्रभु के पास है। हमें किससे मांगना चाहिए मर्सी? नित्यानंद प्रभु से। और अगर नित्यानंद प्रभु ने he does not cast his mercy upon us, मतलब क्या बोलेंगे हिंदी में उसको? he does not cast his mercy upon us, अगर हमारे पे करुणा नहीं किया गया तो हमारे लाइफ में कोई होप नहीं। तो ये जो दिन है, आज का जो दिन है, बहुत 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 ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। आज आप सबको नित्यानंद प्रभु से दिल खोल के मांगना चाहिए, क्योंकि वो वेट कर रहे हैं कि आप कब मांगेंगे। प्लीज मांगिए मर्सी मेरे से, मैं आई एम रेडी टू गिव। परम करुणा निताय चंद्र की, चैतन्य महाप्रभु की। पर मैंने ऐसे कहा था कि 3 चीज हमें करना जरूरी है। 3 थिंग्स। हम लोग जो है भक्त है, मर्सी तो रेडी है, अवेलेबल है, तो 3 चीज, व्हाट 3 थिंग्स एज ए डिवोटी वन शुड डू। ये मर्सी लेने के लिए, ये मर्सी पाने के लिए, ये कृपा पाने के लिए भक्त को क्या करना चाहिए, इसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे और उसके साथ हम कथा को समाप्त करेंगे ऑन टाइम। हरे कृष्ण। तो पहला जो है मर्सी, पहला जो है भक्त को क्या करना चाहिए? He needs to receive the mercy with grateful heart. कृतज्ञ हृदय से हमें इस कृपा को एक्सेप्ट करना चाहिए। एक्सेप्ट को क्या बोलेंगे? ग्रहण करना चाहिए। हाँ? We should accept the mercy of नित्यानंद प्रभु with a grateful heart. ऐसा कहा मैंने कि ये कॉस्टलेस मर्सी है, बराबर है ना? जस्टिस नहीं है, इट्स नॉट जस्टिस। ऐसा नहीं आप आकर कहेंगे ए नित्यानंद प्रभु 20 साल से मैं कर रहा हूँ 16 माला, थोड़ा मर्सी दो। आप ऐसा कहेंगे, चांस नहीं है, बहुत कम है, एक्चुअली लिमिटेड चांस है। हाँ? तो कॉस्टलेस मर्सी है, तो ग्रेटफुल हार्ट होना चाहिए हमारा पास। हाँ? और ऐसा कहा जाता है कि वर्षा जो है 2 जगह पर गिरती है, घास में गिरती है और एक कंक्रीट में गिरती है। घास में गिरती है तो क्या होता है? वर्षा जो है एब्जॉर्ब हो जाता है, बराबर है ना? और कंक्रीट में गिरेगी तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। हाँ, इट विल नॉट हैपन एनीथिंग। तो हमारा अगर हृदय कंक्रीट जैसा है तो क्या होगा? उस मर्सी का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। तो हमारे हृदय को थोड़ा मुलायम बनाना चाहिए। और मुलायम कैसे बनाया जा सकता है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दूसरा चीज जो करना चाहिए हमें, we need to rectify ourselves, no more sin। चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा बधाई से कि you should not commit any more sins now। अब हम यहाँ पर आए हैं तो अभी और आगे हमारा जो जीवन है उसको, जो परिवर्तन जो हुआ है उसके बाद हमको वापस पुराने इसमें जाना नहीं चाहिए। sin should not, we should not do the sin again। हाँ, we should not do the sin again। और अगर sin किया तो क्या होगा कि आपने कृष्णा कॉन्शियस का फायर जलाया और उसमें आके पानी डाल दिया, तो क्या होगा? वो फायर कभी जलेगा ही नहीं। सही है ना? हाँ? और सबसे अच्छी बात क्या है? सबसे अच्छी बात क्या है भक्ति योग चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की मर्सी में क्या है? पास्ट इज नॉट ए कंसिडरेशन। आपका भूतकाल, भूतकाल में आपने किया उसका कोई कंसिडरेशन नहीं। एक स्टोरी आती है इसके ऊपर और उसके बारे में बताऊंगा मैं अभी कि इस्कॉन अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ का एक ये है कि दे डू नॉट कंसिडर द पास्ट। यहां पर आए और आप अभी से क्या कर रहे हैं इसके ऊपर है सब कुछ नहीं, बस एक पास्ट इज नॉट ए कंसिडरेशन। एक बार क्या हुआ, एक बुक डिस्ट्रीब्यूट करा था, तो उससे पहले थोड़े दिन में इस्कॉन को थोड़ा नेगेटिव प्रेस मिल रहा था कि इस्कॉन में कुछ गलत हुआ था, तो उसके लिए थोड़ा नेगेटिव प्रेस मिल रहा था। तो नेगेटिव प्रेस मिलने के कारण तो एक आदमी जो है खुद को बहुत शाना समझता था और थोड़ा धनवान था वो, और उसकी पहुंच थी, पहचान थी, तो थोड़े लोगों के साथ इस बुक स्टॉल में आया, कहा कि प्रभु जी आप जो है हर संस्था में अच्छे चीज भी होते हैं खराब चीज भी होते हैं, सही है ना? बोला तो आप इस्कॉन की थोड़ी खराब मतलब गलतियों जो खराब चीज है उसके बारे में बताइए।
क्योंकि वो चाहता था कि जो प्रेस में जो रिलीज हुआ है उसके बारे में बताएंगे। तो उन्होंने कहा हाँ खराब चीज तो है इस्कॉन। इस्कॉन में क्या खराब चीज है? बोला कि जब कोई इस्कॉन में आता है, अंतर्राष्ट्रीय विश्व महामना के दरवाजे के अंदर आता है, तो उसने पास्ट में क्या किया है हम लोग कभी नहीं देखते। तो ये एक हमारी डिफेक्ट है। तो ऐसा करने के कारण क्या होता है, कई लोग आते हैं और जो कुछ एडवांटेज देखे कभी कभी हमारे लिए खराब नाम भी क्रिएट करते हैं, ऐसा बोलते हैं। तो सभी लोग वो आदमी अच्छा बोलते डरिए मत, आप भी आ सकते हैं, ऐसा बोलते हैं। ऐसा कहकर वो आदमी को जो है तुरंत वो टपा तो वी नीड टू रेक्टिफाई आवरसेल्फ। ओके, ये सेकंड चीज। थर्ड चीज क्या है? नित्यानंद प्रभु की कृपा मिलनी है, तो ये मर्सी जो मिला है ना वो दूसरों को भी देना चाहिए। शुड नॉट कीप द मर्सी विथ योरसेल्फ। अगर मर्सी रिसीव किया है तो उसको बांटना भी चाहिए। ये कैसा है कि अगर आप बांटेंगे ना, कैसा होता है कि अगर हमने डोनेशन दिया, हमारे में जेब में 100 दिनार है, उसमें से मैंने 20 दिनार डोनेशन दिया, तो जेब में कितना होगा? 180 दिनार होगा, करेक्ट है ना? 80 दिनार। मगर ये मर्सी कैसी है, आपके पास 100 दिनार है, आपने 20 दिनार दिया, तो आपकी जेब में 120 दिनार है। ऐसी है मर्सी का कैलकुलेशन। मर्सी का कैलकुलेशन मैथ्स मैथमेटिशियंस को नहीं समझ में आता, तो डिफरेंट कैलकुलेशन। तो ये बहुत ज्यादा सारे समझना जरूरी है। तो तीन चीज है। क्या तीन चीज है? पहले वी शुड एक्सेप्ट द मर्सी विद ए ग्रेटफुल हार्ट। सेकेंड चीज इज व्हाट? वी शुड नॉट कमिट सिन एनीमोर, रेक्टिफाई, वी शुड रेक्टिफाई आवरसेल्व्स। थर्ड क्या है? सिर्फ अपने को नहीं अपने में रखना नहीं चाहिए, इसको हमें बांटना चाहिए। हाँ, वी शुड नॉट कीप इट विद आवरसेल्व्स, वी शुड एक्चुअली गिव इट आउट। हाँ, तो कभी कभी आपको लगता है कि मतलब कभी कभी लोग सोचते हैं कि ये क्या कर रहे हैं इस्कॉन के लोग। इस्कॉन के लोग कैसे मतलब कि मतलब पागल हो गए इन लोग, कि सब सेल्फ ग्रेटिफिकेशन छोड़ दिया है इन्होंने, ऐसा कभी कभी लगता है लोगों को। हाँ, लोग सोचते हैं ऐसे। और आपको भी कभी कभी लगता है कि बाहर जाएंगे तो आउटसाइड वर्ल्ड के साथ कैसे मिक्स कर सकते हैं, डिफिकल्ट हो जाता है। तो मैं एक्चुअली एक सोच रहा था बचपन में, जब बचपन में मैं जब छोटा था तो हम लोग का एक कलेक्शन होता था, मतलब कि बोतल का ऊपर का जो कैप है उसको कलेक्ट करेंगे, इतना कलेक्ट करेंगे। हर बोतल का अलग होता था, थम्स अप का इतना, कॉइन ऐसा। तो हम लोग ने और एक गेम चालू किया था सिगरेट के पैकेट का। तो मार्लबोरो सिगरेट पैकेट को 25 पॉइंट, बिल्स को 10 पॉइंट, फोर्स्क्वायर को 5 पॉइंट ऐसे। हाँ, तो हम लोग क्या करते थे, ये पान शॉप के बाहर खड़े रहते थे और एक आदमी जो सिगरेट लेके वो जो पैकेट फेंका तो हम लोग भागते थे और लेते थे। और हम लोग सोचते थे क्या पागल आदमी है, 25 पॉइंट फेंक दिया इसने। 25 पॉइंट लेते थे और ले जाते थे, तो 25 पॉइंट फेंक दिया पागल। इसी तरह से बाहर के लोगों को भी ऐसे लगता है क्या पागल है इस बात के लोग, कोई सेल्फ ग्रेटिफिकेशन नहीं करता है।